افغان سرزمین سے بلا اشتعال فائرنگ، دہشت گردی کے لیے دراندازی کی کوشش، افغان پاکستان کا دندان شکن جواب، 200 سے زائد دہشت گرد ہلاک، سینکڑوں زخمی۔ افغان طالبان کے حملے میں وطن کے 23 بیٹے شہید، دشمن کے تربیتی مراکز، کمانڈ پوسٹ اور سپورٹ نیٹ ورک مکمل طور پر ناکارہ۔ پاکستان کا 21 افغان پوسٹوں پر قبضہ، قومی پرچم لہرا دیا گیا۔ افغان طالبان پاک فوج کو دیکھ کر دم دبا کر بھاگ گئے، یونیفارم، ہتھیار اور لاشیں بھی چھوڑ گئے۔ ISPR کے مطابق پاکستان پر حملہ طالبان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران کیا گیا۔ پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گردی کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان کی دفاع کے حق میں کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ دفاعی ذرائع کے مطابق افغان حکومت بھارتی اشارے پر علاقائی عدم استحکام پیدا کر رہی ہے۔ پاکستان کی علاقائی امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ پاکستان کے منہ توڑ جواب میں افغانستان کی کئی پوسٹیں ملیامیٹ، دہشت گردوں کو چھپانے والے خفیہ اڈے تباہ کر دیے گئے۔ برامچا سیکٹر میں افغانی شہیدان پوسٹ، منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ، منوجبہ کیمپ 2 اور 3 بھی نیست و نابود۔ درانی کیمپ، ترکمانزئی کیمپس اور کرم بارڈر کے مخالف افغان پوسٹوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ پاک افواج کا افغان طالبان کی جارحیت کا بھاری ہتھیاروں سے مؤثر اور منہ توڑ جواب۔ افغان طالبان کی اشرف سر پوسٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ باجوڑ کے قریب افغان سرحدی علاقہ کھنڑ اور لیوبند قلعہ عبداللہ سیکٹر میں افغانی پوسٹیں مکمل تباہ۔ کرزئی اور شپولاہا پوسٹ بھی اڑا دی گئیں۔ افغانستان کی پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی روکنے کی درخواستیں۔ افغان طالبان کے طالبان سپاہی کی خود کو پاک فوج کے سامنے سرنڈر کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ خارجیوں اور افغان طالبان کے خلاف ایک اور بڑی کامیابی، خرچر فورٹ مکمل تباہ، افغان پوسٹوں میں چھپے خارجی بھاگتے ہوئے مارے گئے۔ جنوبی وزیرستان سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں متعدد افغان چوکیاں تباہ، سپن بولدک سیکٹر میں سازشوں کے گڑھ افغان طالبان کے اہم ترین عصمت اللہ قرار کیمپ کو اڑا دیا گیا۔ عصمت اللہ قرار کیمپ سے پاکستان مخالف دہشت گرد کارروائیاں عمل میں لائی جاتی تھیں۔ توپسر پوسٹ پر بھی پاکستان کا قبضہ، برابشاہ میں افغان طالبان کی بٹالین کو نشانہ بنایا گیا۔ بٹالین سے خارجیوں اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو پاکستان میں لانچ کیا جاتا تھا۔ چترال سیکٹر کے مخالف افغان طالبان کا بریگوڈ بیس کیمپ بھی تباہ، ویڈیو میں چیک پوسٹ میں آگ لگتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی افغانستان کی سرحدی علاقوں میں اشتعال انگیزی کی شدید مذمت، بھرپور جوابی کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا، پاکستان کی سلامتی پر سمجھوتا نہیں ہوگا، افغان عوام کی مدد جاری رکھیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ مشترکہ ذمہ داری ہے، کسی ایک ملک پر اس کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج نے افغانستان کو بھرپور جواب دیا۔ پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ملک کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملکی مجموعی داخلی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ کی وزیر اعظم کو امن و امان کی مجموعی صورتحال اور اقدامات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کاوشوں کو سراہا، کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ، قانون کی بالادستی اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے، اور دہشت گردوں کے حوصلے جو ہیں وہ مکمل طور پہ پست ہیں، اور ان کو ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے، کیونکہ وہ شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے تھے طالبان کی حکومت کو، اور طالبان کے پیچھے چھپ کے یہ حملے کرتے تھے اور ان کی سپورٹ سے کرتے تھے۔ کل جب پہلی دفعہ طالبان کے ساتھ مل کے وہ کھلے ہو کے سامنے آئے تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اور جو ان کو پاک فوج نے جواب دیا ہے، اور پاکستانی عوام جو فوج کے پیچھے کھڑی ہے اس کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے، تو آئندہ یہ کبھی جرت نہیں کریں گے کہ یہ پراکسی وار کریں یا گوریلا وار کریں یا کنونشنل وار کریں، کیونکہ پاک فوج نے اپنا لوہا منوایا ہے کنونشنل وار میں بھی، گوریلا وار میں بھی اور پراکسی وار میں بھی۔ پاک فوج کے بھرپور جواب سے اب دہشت گرد دوبارہ سر اٹھانے کی جرت نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کی پبلک نیوز سے گفتگو، کہا، افغان طالبان کو افغان عوام کی حمایت حاصل نہیں، پاک افواج کی کارروائی سے دہشت گردوں کے حوصلے پست ہیں۔
पाक फौज ने मैदान जंग में अपना लोहा मनवाया। शोहदा हमारे सरों का ताज हैं। ततारड़ ने एक बयान में कहा, पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का हमला महज इत्तफाक नहीं, मुजरिमाना इशारा है। हमले का वक्त बहुत कुछ कह रहा है। पाकिस्तानी अवाम खबरदार रहें। पाक अफगान सरहद के हालात पर गहरी तशवीश है। तालिबान हुकूमत की जानिब से बिला इस्तियाल फायरिंग और सरहद पार हमले संगीन हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेगा। जवाबी ऑपरेशन तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए किया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाद आसिफ ने कहा कि अफगान हुकूमत के अदम ताउन से हालात यहाँ तक पहुँचे। दहशत गर्दों और अफगान हुकूमत का गठजोड़ है। अफगान महाजरीन को अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। अफगान निगरान वजीर खारजा का दहशत गर्दी से मुतालिक बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अफगान सरजमीन से दहशत गर्द अनासर की सरगर्मियों के शवाहिद मुतअद्दिद बार फराहम किए। दहशत गर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने से अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से लाखों अफगान बाशिंदों की मेजबानी की। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का वक्त आ गया। पाकिस्तान का भारत और अफगानिस्तान के मुश्तरका एलामिये के मुंदरजात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार। पाक अफगान कशीदगी अवामी जंग नहीं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज़ पर होगा। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारत परस्त शरपसंद अनासर के खिलाफ है। पाकिस्तान का जवाबी रद्द-ए-अमल दहशतगर्दाना ठिकानों तरबियती मराकज़ के खिलाफ है जो पाकिस्तानी हदूद में जारियत में मुलव्विस थे। सऊदी हुकूमत का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की अपील। कतर का भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। कतरी वजारत खारजा का कहना है, दोनों ममालिक तहम्मुल, बातचीत और सिफारतकारी से मसाइल हल करें। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी नागुज़ीर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। ईरानी वजारत खारजा का कहना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया कशीदगी पर तशवीश है। हर मुल्क की इलाकाई सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम जरूरी है। कबाइली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। पश्तो में जारी ऑडियो पैगाम में कहा कि अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वतन का दिफा हम पर फर्ज है और हम उसका दिफा करना जानते हैं। पहले भी दहशत गर्दों को सबक सिखाया, अब भी सिखाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान के गयूर कबाइल का पाक फौज से इज़हार यकजहती। बराबचा और दालबंदीन के गयूर कबाइल का बॉर्डर पर जाने के लिए इसरार। पाक सरजमीन अमन की जामिन है, कमजोरी की अलामत नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज का अफगान जारियत का दलेरी से जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज पूरी कौम की इज्जत, गैरत, अज़्म और वक़ार की अलमबरदार है। अफगान जारियत का जवाब पाक अफवाज ने जुर्रत, दानिशमंदी और कौमी इत्तेहाद से दिया। पाकिस्तान की सरहदें मुक़द्दस अमानत हैं, उनकी हिफाजत हर पाकिस्तानी का फर्ज है। पाकिस्तान की सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता न होगा। मैंने बार बार अपने भाई से गुजारिश की कि तेरे यहाँ से मेरे वतन में आके लोग मेरा खून बहाते हैं, लेकिन मेरा भाई कोई तवज्जो नहीं दे रहा। बल्कि अफसोस तो ये है कि वो किस्त खुर्दा हिंदुस्तान वहां पे बैठ के अफगान अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा हमें धमकियां दे रहे हैं। आज के लम्हे खुशी के नहीं गम के हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए जान माल कुर्बान किया, आज वो मेरे वतन पर हमलावर है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, हम कब्जा या मुदाखलत नहीं चाहते, अक्ल करो। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई से सबक सीखो। हिंदुस्तान में बैठकर अफगान वजीर खारजा हमें धमकियां दे रहे हैं। ना हम सोवियत यूनियन, ना अमेरिका या बरतानिया, ना नेटो हैं, हम पाकिस्तान हैं। फिर कहते हैं कि आप हमारे भाई और पड़ोसी हो, लेकिन एक बात याद रखना, हम अपने दिफा से गाफिल नहीं हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी मुशावरत। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ को हालिया हुकूमती इक़दामात पॉलिसीज़ पर ब्रीफिंग। दोनों रहनुमाओं का मुल्की इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ के लिए काम करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मिस्र जाएंगे। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म अल शेख में अमन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में भी शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और दीगर वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ मिस्र जाएंगे। ये जो कार्रवाई मुसल्लह अफवाज ने की है, ये वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि जब 11 जनाजे 30 जनाजे पड़े जा रहे थे, इतने लाशें उठाए जा रहे थे, तो पूरी कौम जो है वो उनके दिलों में ये सवाल ज़रूर था कि हम कब तक जो है ये अपने जवान सपूतों के जनाजे पढ़ते रहेंगे। और हर दिल में ये बात थी कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए, और इतना ही मुअस्सर जवाब दिया जाना चाहिए जितना कि जवाब जो है वो कल दिया गया है। लीगी सेनेटर राना सनाउल्लाह की तमाम सियासी जमातों को मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मिल बैठने की दावत। कहते हैं कि पाकिस्तान को दाखिली इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सियासी क़यादत को इस मौके पर लबैक कहना चाहिए। तहरीक इंसाफ बेशक हमें गालियाँ देती रही, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए हमसे बात करे। तहरीक इंसाफ ने सियासत करनी है तो पाक फौज के साथ खड़ी हो। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले कि आज हमने छुपे हुए दुश्मन को ठिकाने लगाया। फील्ड मार्शल की क़यादत में फ़ौज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ठिकाने तबाह किए गए। गजा का मसला हल हो चुका है। मजहबी जमात को एहतजाज ख़त्म कर देना चाहिए। मजहबी जमात की एहतजाज की कॉल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। मरी रोड, फैजाबाद एक्सप्रेस वे और IJP रोड बंद। कचहरी चौक, चक्री इंटरचेंज, टी चौक रवात को खोल दिया गया। ढोक काला खान, डबल रोड, चांदनी चौक, कमेटी चौक, लियाकत बाग को जुज़वी खोला गया। सदर, मरीड़, कलमा चौक को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मेट्रो बस सर्विस, लोकल ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। कई इलाकों में मोबाइल सर्विस बहाल होना शुरू। मोटरवे M2 और पेशावर मोटरवे खोल दी गई। GT रोड पर जगह जगह कंटेनर से रास्ते बंद। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब कल शेड्यूल। PTI के सुहेल आफरीदी के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। अपोजिशन की तरफ से लुत्फुर रहमान, सरदार शाहजहां, अरबाब ज़र के कागजात जमा। असम्बली अरकान शो ऑफ हैंड के जरिए कायदे ऐवान का इंतखाब करेंगे। वज़ीर आला हाउस में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। जुनैद अकबर ने कहा कि बानी PTI का इंतखाब सुहेल आफरीदी है। कल तमाम मेंबरान अपने वज़ीर आला को जितवाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें मुतफ़िका उम्मीदवार सामने न ला सकी। पीपल्स पार्टी ने अरबाब ज़र्क और नून लीग ने सरदार शाहजहां को फाइनल कर लिया। JUI की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान उम्मीदवार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन अरकान का मुशावरती इजलास हुआ। डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है, स्पीकर को कहा है वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है। अभी काबीना तहलील नहीं हुई। ये इंतखाब अदालत में चैलेंज हो सकता है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है कि गवर्नर राज आईनी रास्ता है। फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। अगर एक वज़ीर आला के इस्तीफे का अमल मुकम्मल नहीं हुआ तो दूसरे का इंतखाब कैसे हो सकता है, मालूम नहीं PTI को किस बात का खौफ है।